Hello learners, welcome to Unfold You, the digital learning platform. This is Sarabpreet, your accounting mentor. Today we will study about the trial balance and rectification of errors. In this chapter, we have the purpose of preparing the trial balance, differentiate the different types of errors जो हमारे रूटीन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर errors हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, how to rectify such errors. We have two different sided errors that are not affecting trial balance, तो वो अलग अलग जो हैं. Then balance and one sided errors, the errors which affect the trial balance. तो एक errors होती हैं जो जिससे trial balance affected हो जाता है, दूसरी होती हैं नहीं होता. Then to understand the meaning and the utility of suspense account, जो हम suspense account create करते हैं वो क्यों create करते हैं और उसका impact क्या पड़ता है हमारे books of accounts के ऊपर. Then maintaining of suspense account. So these are the things which we're going to study in this chapter. Now we'll begin with the trial balance. Trial balance is a statement. So now the thing is, the most important, trial balance is not an account. ये हमेशा एक statement form के अंदर होती है, because इसके अंदर ledger नहीं होता. With debit and credit totals, debit balance is extracted from the ledger. So दो methods हो गए, एक तो debits का total या credits का total हो जाता है, दूसरा हम सिर्फ net effect हम लेके चलते हैं जो debit and credit, जो ledger का debit balance या credit balance of a respective account, उसको लेके हम trial balance prepare कर सकते हैं. This is done to verify the arithmetic total accuracy of the account. मतलब जो arithmetic accuracy है, जो हमारी calculations हैं, उसको check करने के लिए हम trial balance prepare करते हैं. To ascertain the arithmetic accuracy, to help locating the errors, जो हमारी गलतियां हैं, उसको हम जान सकते हैं किस ledger के अंदर क्या क्या गलतियां हुई हैं. Help in preparing the single account, जो single accounts होते हैं हमारे, जैसे subsidiary books के अंदर purchases book है, sales book है, purchase return, sales return book है, petty cash book है, cash book है, ये हमारी single entry books रहते हैं. तो इनको prepare करने में हमारी कई बार कुछ गलती हो जाती है, तो उसको rectify करने में, उसकी preparation करने में हमारे helpful होता है trial balance. Something very important is the errors, whether affecting the trial balance or not, must be detected and rectified. तो basic purpose जो है, बेशक वो affect कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, तो वो rectify करना हमारे लिए बहुत important होता है to reach the correct figures for the final accounts. Now, need for the rectification. क्यों करते हैं हम? The preparation of correct accounting records. Correct accounting records को prepare करने के लिए हमें rectification जरूरी है. Preparation of profit and loss account with the corrected figures, जो हम profit and loss account बनाते हैं, means the correct profit या loss हमने ascertain करना हो, तो उसके लिए हमारी ledgers का, books of accounts का correct होना बहुत जरूरी है. To find out the true financial position of the firm for preparing the balance sheet prepare करने के लिए हमारी जो financial figures जो हैं true and fair होना जरूरी है. So for that purpose हमारी जो rectification है वो हो जाना जरूरी है. Then the types of errors. So we have certain types of errors which are we going to do one after the other. सबसे पहले है error of omission, means जो हमारी accounting entry है वो transaction ही हमने record नहीं करी हमारे books of accounts के अंदर, ना ही debit side ना ही credit side. So this is one of the errors जिससे हमारी debit और credit को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, but हमारे books of account के अंदर malicious figures या false figures कह लीजिए वो आती हैं नज़र, जिससे हम correct profit नहीं ascertain कर सकते. The error of complete omission, goods sold to X on credit recorded in the sales book, not recorded in the sales book, means हमने Mr. X को goods बेची हैं और वो sales account के अंदर नहीं डाली गई, हमने entry record ही नहीं करी. So what we can do is for this rectification we will understand, then for that we will learn about the partial omission, means entry तो करी है but on one side. Partial omission,
परचेज मशीनरी ऑफ 5,000 रुपीज इन कैश रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मीन्स कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर ली, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के अंदर डाली नहीं, दिस इज पार्शियल ओमिशन। पहले वाले के अंदर कंप्लीट ओमिशन थी, इसके अंदर पार्शियल ओमिशन है, मीन्स बुक्स के अंदर एंट्री है बट ऑन वन साइड ओनली, नॉट ऑन द अदर साइड। नाउ एरर्स ऑफ कमीशन, दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ एरर। इन दिस क्या होता है, जो अमाउंट है दैट इज रिकॉर्डेड रॉन्गली, जो ट्रांजैक्शन है वो हम गलत तरीके से रिकॉर्ड कर देते हैं। रॉन्ग टोटलिंग, बुक्स का टोटल जो हमने लेजर का टोटल किया वो गलत कर दिया, आइदर इन द लेजर और इन द सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग पोस्टिंग, हमने गलत लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया और गलत तरीके से पोस्ट कर दिया, मींस डेबिट साइड पे करना था हमने क्रेडिट साइड पे कर दिया, आइदर ऑफ द वेज। एंड कैरिंग फॉरवर्ड, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए बैलेंसेस वो हमारे गलत हो गए। सो दिस इज व्हाट अ एरर ऑफ कमीशन इज। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मींस जो हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक्स हैं उसके अंदर कैसे हो रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, हमने रवि से गुड्स परचेज किए 450 रुपीज के, बट हमने रिकॉर्ड कर दिए 540 इन द परचेजेस बुक। परचेजेस बुक के अंदर 540 की एंट्री हो गई 450 की बजाय, मींस रॉन्ग एंट्री हो गई बाय 90 रुपीज। सो दिस इज व्हाट एरर ऑफ कमीशन। नाउ रॉन्ग टोटलिंग, सब्सिडरी बुक्स के अंदर रॉन्ग टोटलिंग है, पूरे महीने के अंदर जो एंट्री हुई है वो हमने लेट्स से परचेजेस करी थी 35 लाख की, बट उसका जो टोटल हुआ 38 लाख आ गया। सो 3 लाख का जो हमारा जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ रॉन्ग टोटलिंग, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 38 लाख की एंट्री हो जाती है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टोटलिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट गलत फिगर्स दिखाती हैं। We have an example, purchases book is undercast by 100 rupees, जो हमारा अंडरकास्ट है मीन्स जो टोटल कम लगाते हैं हम, ओवरकास्टिंग होती है टोटल ज्यादा हो जाता है, जो मैंने एग्जांपल दी थी, ये है अंडरकास्टिंग की, जो टोटल हमारा कम लगा है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। देन एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर बैलेंसिंग के अंदर या हमने टोटल करने में गलती कर दी। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन शॉर्ट बैलेंस्ड बाय 500 रुपीज, जब उसकी बैलेंसिंग करी उसके अंदर 500 रुपए हमने गलत डाले या गलत टोटल किए। सो दिस इज व्हाट एन एरर। देन एरर ऑफ पोस्टिंग, हमने गलत पोस्टिंग करी है, कैसे, द पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट इन द करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अकाउंट में तो डाल दिया बट डेबिट करना था हमने क्रेडिट कर दिया। So this is also an error. Like goods sold to X of 550 rupees. Mr. X को हमने 550 के गुड्स सेल किए हैं, उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए थे, बट बाय मिस्टेक हमने उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया विद द सेम अमाउंट। सो दिस इज अ बिग एरर, जिससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत रिफ्लेक्ट करती हैं। देन पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट तो करेक्ट था, अब पोस्टिंग भी रॉन्ग अमाउंट के साथ हो गई है, कैसे, 550 की जगह 550 हमने डेबिट करना था, हमने 450 रुपीज डेबिट कर दिए। सो दिस इज द रॉन्ग अमाउंट ऑफ पोस्टिंग इन द करेक्ट साइड वेदर। देन पोस्टिंग ट्वाइस, अकाउंट के अंदर हम एक ही एंट्री हमने 2 बार कर दी सेम पर्पस के लिए। सो this is also an error. Errors in posting to the wrong account but correct side. Let's say मैंने अपनी मशीनरी को रिपेयर कराया है, उसके ऊपर 5,000 रुपीज का मेरा खर्चा है, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द रिपेयर अकाउंट बट मैंने डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट। सो दिस इज एन एरर जो हमारी रॉन्ग साइड रॉन्ग अकाउंट के अंदर आई है। सो दिस शुड आल्सो बी रेक्टिफाइड। देन नंबर 5, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसमें भी गलती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज 2,500, wrongly carried forward as 2,050 rupees.
2500 का कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, गलती से 2050 का हो गया. सो दिस इज व्हाट एन एरर इज. दिस इज द फिफ्थ एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. Number 3, the third kind of error is errors of principle. पहली error थी error of omission, then second one error of commission, third one is error of principle. इसके अंदर क्या होता है? The error is caused due to the violation of accounting principle. हमारे accounting principles के accordingly हमारा जो है entry वो गलत हो गई. Right? So allocation, that is allocation between capital and revenue items. जो capital items है, revenue items है. So capital item की entry capital accounts के अंदर जानी चाहिए, revenue items की entry revenue accounts के अंदर जानी चाहिए. So वो गलती हमारी हो जाती है, तब हम कहते हैं errors of principle. Treating the capital items as a revenue item. As an example, the wages paid for the installation of a new machinery is charged to wages account. हमने wages के अंदर डाल दी गलती से, जबकि जाने कहाँ चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट के अंदर. बिकॉज मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए इट वॉज अ न्यू मशीनरी जो हमने परचेज करी है, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमने रिपेयर्स कराए हैं, तो वो रिपेयर्स अकाउंट के अंदर डालने चाहिए थे, मशीनरी में डाल दिए. वेजेस हमने पे किए हैं टू गेट इट डन वर्क, तो वो हमारा मशीनरी में जाना चाहिए था, गलती से वेजेस में डाल दिए. सो दिस इज व्हाट रॉन्ग एंट्री इज. कैपिटल में जाना चाहिए था, रेवेन्यू में चला गया. ट्रीटिंग द रेवेन्यू आइटम्स एज कैपिटल. जो रेवेन्यू आइटम्स हैं वो हमारी कैपिटल आइटम हमने ट्रीट कर ली. लाइक 200 रुपीज पेड फॉर द रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड मशीनरी बट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. हमारे जो है पुरानी मशीनरी थी, पुरानी एसेट है, उसको रिपेयर करवाया, उसको भी हमने मशीनरी अकाउंट में अंदर डाल दिया. सो दिस इज वन ऑफ एन एरर. तो वो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव द एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो जो गलती से हमने रिपेयर्स में डालना चाहिए था, मशीनरी से डाल दिया. देन नंबर 4 इज द कंपनसेटिंग एरर्स. मतलब दो एरर्स हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं. मीन्स मैंने रिपेयर्स करवाई 400 रुपए की, तो वो मैंने डेबिट कर दिया. एंड दूसरी जो एंट्री थी वो मैंने क्रेडिट साइड में डाल दी, जो कि मेरे को मशीनरी अकाउंट में डालनी चाहिए थी. सो एक ही अकाउंट के अंदर दो सेम अमाउंट की एंट्रीज होगी. सो लेजर बैलेंस को तो इम्पैक्ट नहीं करा, बट इट हैज अफेक्टेड द बैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स. जो है दूसरे दोनों अकाउंट्स के अंदर फर्क पड़ जाता है. For example, the cash paid to Ram of 5,000 rupees but debited to him as 500 rupees. हमने राम को 500 रुपए दिए और उसको हमने डेबिट कर दिया. मोहन paid 500 rupees, debited him as 5,000 rupees. उसने 500 दिए और 5,000 उसको डेबिट कर दिए. Net effect will be nil. उसने 5,000 आए, हमने 5,000 दिए थे और 500 हमने डाले हैं, और मोहन को 500 दिए थे और उसके अकाउंट के अंदर 5,000 डाल दिए. सो मींस एक दूसरे को ये दोनों की दोनों एंट्रीज वो कर रही हैं कंपनसेट. सो ऐसी एंट्रीज का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, विच रिफ्लेक्ट्स द फॉल्स फिगर्स. नाउ we have two different cases जिसके बेसिस के ऊपर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं. तो रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. वन which affects the trial balance, the other which do not affect. So सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, the errors of complete commission. मतलब जो एंट्री जो है वो गलत हो गई है. रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स इन द ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जो ओरिजिनल एंट्री के अंदर हमने एंट्री गलत करी है, मींस जर्नल और कैश बुक्स. देन कंप्लीट कमीशन फ्रॉम पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग हमने गलत कर दी. एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट के अंदर डाल दिया बट ऑन द करेक्ट साइड. देन कंपनसेटिंग एरर्स. सो ये एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती. Lastly, errors of principle.
मीन्स अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट की जगह रेवेन्यू अकाउंट के अंदर एंट्री होगी और वाइस वर्सा। तो ये भी गलती जो है अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं होती, बट ये हमारा जो है इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो गलत रिफ्लेक्ट करती है। देन द सेकेंड वंस आर द एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। एरर्स इन टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग होगी सब्सिडरी बुक्स की। एरर्स इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट गलत बैलेंस कर दिए। पोस्टिंग हमने गलत उस कर दी। देन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, हमारी जो ओमिशन है वो पार्शियल हुई है, मतलब आधी एक जगह पे एंट्री हुई दूसरी पे नहीं हुई। सो दीज आर द एंट्रीज विच अफेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस। नाउ रेक्टिफिकेशन, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? When the errors are detected, these have to be rectified in the books of account. सबसे पहले इसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है to reach the final figures, जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाने होते हैं। Rectification of errors depends upon the type of error, जो हमने ऑलरेडी किए। सबसे पहले हमने error डिफाइन करना है। The time of the depiction of an error, किस समय हो गई थी उसका देखना है, मतलब एक ही अकाउंट सेम अकाउंटिंग ईयर की होगी तब तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। So that we have to identify. Then the errors detected before the preparation of trial balance, अगर हमारी errors trial balance बनने से पहले ही detect हो गई हैं। Second, the errors detected after preparing the trial balance बनने के बाद, but final accounts नहीं बने। And lastly, after preparing the फाइनल अकाउंट्स, जब हमारे फाइनल अकाउंट्स भी बन गए हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट स्टेजेस जब हमें पता चलता है कि हमारी बुक्स के अंदर एरर है, तो वो हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे आगे। विल स्टडी फर्दर। नाउ टू साइडेड एरर्स, जो एरर्स डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स को अफेक्ट करती हैं। दीज एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे अफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। These errors are rectified by passing the journal entry, irrespective of the time of depiction. जिस समय भी पता चले, इसकी सिंपली एक जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जर्नल प्रॉपर बुक के अंदर, जिससे कि हम दोनों अकाउंट्स को हम करेक्ट कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस जो है नया बनाया जा सकता है। Then locate the effect of error on different accounts, जो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं। The account showing the excess credit should be debited. जहां पे excess credit हो गया वहां पे डेबिट कर देंगे, एंड जहां पे excess डेबिट है वहां पे हम उसको उसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे by passing a entry in a journal proper. Then the account showing the short debit should be debited. जिसका डेबिट कम है, मीन्स हमने टोटली कम किया था, उसको हम रेज करते हैं। So we will study in the same chapter only. Then the account with the short credits, वो भी हम क्रेडिट करेंगे in a similar pattern. Now the examples, किसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। When the account has been wrongly debited in place of another, दूसरे की जगह पे, like an example, the machinery purchased for 10,000 rupees has been debited to purchases account. मशीनरी परचेज करी है बट वो परचेजेस अकाउंट के अंदर हमने डाल दी। So how it is done? The machinery account is not debited, hence its debit is short by the account 10,000 rupees. मशीनरी के अंदर हमारा 10,000 रुपये जो है खरीदी थी वो 10,000 शॉर्ट हो गया, एंड सिमिलरली परचेजेस अकाउंट के अंदर एक्सेस हो गया, परचेजेस तो करी नहीं हमने, इट इज एक्चुअली अ परचेज ऑफ अ मशीनरी, सो वो एक्सेस हो गया। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? While rectifying this kind of a mistake, the machinery account को हम डेबिट करेंगे एंड परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जो हमने गलती से पहले कर दिया था। So rectifying entry will be machinery account will be debited with 10,000 rupees and the purchases account should be credited by 10,000 rupees by writing the notion as the machinery wrongly debited. Right? So इसको हमने rectify कर दिया। So this is how we do the rectification, जब हमारे पास wrong account के अंदर entries हो जाती हैं but correct amount on the correct side हो जाए। So we simply pass this kind of entry in the journal proper.
when the account has wrongly been credited in place of another account. अब क्रेडिट गलत कर दिया, उसमें डेबिट गलत था, इसमें क्रेडिट गलत है. 5,000 received from sale of old furniture credited to sale account. फर्नीचर बेचा है बट गलती से सेल्स अकाउंट के अंदर डाल दिया. जाना कहां चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट के अंदर. तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था. सो ये भी गलत हो गया. The error also affects the two accounts. दोनों अकाउंट्स के अंदर गलती हो गई. Furniture account is not credited on the credit side and short by 5,000 rupees. Furniture account जो क्रेडिट हो गया वो शॉर्ट हो गया, मतलब कम हमने क्रेडिट किया है. एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय मिस्टेक, तो सेल्स अकाउंट के अंदर एक्सेस हो जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट जो उसके अंदर चला गया. नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट? तो इसको भी हम सिमिलर पैटर्न में जो हमने पहले किया था, सेल्स को हम डेबिट कर देंगे एंड फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे. सो दिस इज व्हाट अ रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम जनरल प्रॉपर में करेंगे. सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 एंड फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज हमने फर्नीचर सेल किया था 5,000 से. सो सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स, ये हमारी नरेशन रहेगी. देन द थर्ड kind of error, when the short debit in one account and the short credit in another. एक के अंदर डेबिट कम है, दूसरे के अंदर क्रेडिट कम है. So example, goods sold to Seema 540 entered in the books as 450. हमने गुड्स बेची 540 की, एंटर कर दी 450 की. Now the solution to it is Seema's account is to be debited by 90 rupees. जो क्रेडिट सेल्स है वो 90 रुपीज से शॉर्ट हुआ है क्रेडिट. सो दोनों की हमने एंट्री पास करनी है. Therefore rectification entry will be done by debiting Seema's account and crediting the sales account. So ये अकाउंट्स जो है हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे रिस्पेक्टिवली. So Seema's account debit 90 rupees, sales account debit क्रेडिट 90 रुपीज. सो जो हमने रेक्टिफाई करना है इस तरीके से. सो बाय सेइंग दैट द रॉन्गली एंटर्ड एज 450 रुपीज, जो 540 होना चाहिए था. देन नंबर 4, द एक्सेस डेबिट ऑन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट. राइट. सो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन डेबिटेड एंड क्रेडिटेड 3,000 इंस्टेड ऑफ 300. तो मीन्स हमने 2,700 हमने ज्यादा इफेक्ट कर दिया दोनों बुक्स के अंदर. सो मोहन्स अकाउंट इज आल्सो क्रेडिटेड 2,700 मोर एंड परचेजेस भी 2,700 ज्यादा हो गया डेबिट. सो रेक्टिफिकेशन विल बी डन. रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मोहन का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे जितना एक्स्ट्रा हुआ था 2,700 से, एंड परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स हम ये एंट्री कर देंगे विद द अफेक्टिंग अमाउंट, जितने अमाउंट से हमने गलती करी थी. नाउ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ अकाउंट, आइदर डेबिट और क्रेडिट. सो नेक्स्ट जो एरर्स होती हैं वो दोनों में से एक जगह पे अफेक्ट हो रही है, डेबिट या क्रेडिट. सो ये डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है. हमारा ट्रायल बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है. Rectification of these errors is done differently. जो पहले हमने किए हैं उसकी तरह नहीं होगा, इसका मेथड डिफरेंट है. Now, before preparing the trial balance and after preparing the trial balance, before का मेथड अलग है, after का मेथड अलग है. Now, when the errors are rectified before preparing, पहले जब हमें मिल गई हैं तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जो भी डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट के अंदर एक हम फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, जो कि हमारा जीरो हो जाना चाहिए जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स परफेक्टली करेक्ट हो चुकी हैं. सो दिस इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विच वी डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स. शॉर्ट डेबिट concerned is debited, so excess credit concerned is debited, means
अगर डेबिट कम है या एक्सेस क्रेडिट है, दोनों के दोनों डेबिट कर देते हैं। शॉर्ट क्रेडिट इज क्रेडिटेड, एक्सेस डेबिट इज क्रेडिटेड। सो ये जो एंट्रीज हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द नेचर हम उसको अफेक्ट करते हैं। नाउ द केस 2, द रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं? व्हेन द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है उसके बाद हमारी ये एरर्स जो है आइडेंटिफाई हुई हैं। सो व्हाट वी डू is we simply rectify the errors by passing the entry through suspense account. तो हम suspense account के थ्रू पहले journal entry पास करते हैं, then we finish up the things to correct the accounts. Short debit of one account and that account and the credit the suspense account. जो account short हुआ है डेबिट तो उसको पहले डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। एक्सेस क्रेडिट इन वन अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? उसी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे एंड देन सस्पेंस को हम डेबिट कर देंगे। शॉर्ट क्रेडिट इन वन अकाउंट, क्रेडिट दैट अकाउंट एंड डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। अगर कम है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिस जो अकाउंट में कम क्रेडिट है उसको हम और क्रेडिट कर देंगे। एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट, we need to credit that and debit the suspense account. इससे क्या होगा? हमारे अकाउंट्स जो हैं प्रॉपरली मेंटेन हो जाएंगे एंड हमारा अकाउंट भी रिस्पेक्टिव डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में का इफेक्ट हो जाएगा एंड सस्पेंस अकाउंट हमारा जीरो हो जाता है। नाउ द सस्पेंस अकाउंट एट इट्स डिस्पोजल, सस्पेंस अकाउंट पहले बना है और उसको हम डिस्पोज करते हैं। When in spite of all the efforts the trial balance does not tally, the difference is put into the newly opened account, that is suspense. जब हमारा सब एफर्ट्स कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस जो हमारा बन जाता है तो उसमें अभी भी डिफरेंस रहता है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट opened temporarily for the purpose of reconciling the balances. तो इसको अपने बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। Then later on, when the errors affecting the trial balance located, जब वो errors मिल जाती हैं, rectification entries भी पास कर देते हैं through suspense account, तब जाके हमारा trial balance correct होता है। When all the errors are located and rectified, the suspense account will be automatically closed. जब हम सारी entries करेक्ट कर देते हैं तो हमारा सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, बिकॉज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर हो गया एंड सस्पेंस अकाउंट हमारा जीरो हो जाएगा। बट इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज द बैलेंस, इट विल इंडिकेट दैट कुछ ना कुछ एरर्स हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस। नाउ we have a revision time. So we have the first question over here. What kind of accuracy is tested by the trial balance? Trial balance से कैसी accuracy हमारी टेस्ट होती है? That is arithmetical accuracy. जो हमारे figures हैं वो उसका total balancing वो हम चेक करते हैं। Which of the following is prepared on the basis of trial balance? Trial balance के basis पे क्या बनाया जाता है? That is फाइनल अकाउंट्स। ना तो उससे जर्नल बनते हैं, लेजर भी नहीं बनते, तो ये तो रादर लेजर से तैयार होता है ट्रायल बैलेंस। सो वी हैव द फाइनल अकाउंट्स जिससे हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस कौन कौन सी है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर्स या नन ऑफ दीज। तो ये जो एरर्स हैं इससे हमारा ट्रायल बैलेंस को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ट्रायल बैलेंस से एरर तो वही मिलेगी जिससे ट्रायल बैलेंस गड़बड़ होता है। सो आवर आंसर इज नन ऑफ दीज। एरर्स आर रेक्टिफाइड इन दिस बुक। कौन सी बुक के अंदर रेक्टिफाई की जाती हैं? लेजर बुक, जर्नल प्रॉपर, ट्रायल बैलेंस एंड नन ऑफ दीज। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जो रेक्टिफिकेशन है इट इज ऑलवेज डन थ्रू जर्नल प्रॉपर। So thank you for watching this video. If you have any doubts,
Don't forget to share it in Ask Your Doubts section. Till then, keep learning. Take care.